Hey everyone, this is Nikita and a very warm welcome to my channel. So before directly diving into the video, I have to make a correction in one question. So I have just recently uploaded one video where I have solved few questions, basically few previous year questions on electro and surface chemistry. So there's one correction in one question. So there was this question, I think the second question, in which you had to tell the correct representation of Freundlich adsorption isotherm. So when I started solving the question, when I started approaching the question, I said कि it is represented by x by m is equals to kp to the power 1 by n. ठीक है, तो उसमें मैंने बोला था कि जो एन की वैल्यू रेंज है इट इज़ फ्रॉम 0 to 1. सो देयर इज़ अ करेक्शन कि यहाँ एन की वैल्यू रेंज नहीं है, दिस इज़ द वैल्यू रेंज ऑफ 1 by n. एन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1. ठीक है, तो ये जो 1 by n की रेंज है दैट विल बी ऑलवेज फ्रॉम 0 to 1. सो x by m is equals to kp to the power 0.3. दैट वॉज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि जो 1 by n की वैल्यू वो 0 से 1 है, तो 1 इसका लास्ट रेंज है, इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1. सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन. Okay, so that was all about the previous video I have uploaded for the medical aspirants. Basically, you can go and check it out. This was the correction in the question, and let's begin the questions. IIT JEE questions of the chapter electro and surface chemistry for the IIT students and students preparing for JEE mains. So the first question is, adsorption of a gas follows Freundlich isotherm. X is mass of gas adsorbed on mass m of adsorbent. Plot of log x by m versus log p is shown. X by m is proportional to. तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्वेश्चन में इट हैज़ मेंशन्ड देयर इज अ गैस एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस टेकिंग प्लेस विच फॉलोज फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, और लॉग एक्स बाय एम और लॉग पी के बीच में दे हैव ऑलरेडी प्लॉटेड अ ग्राफ. ठीक है, तो सबसे पहले ये फर्स्ट क्वेश्चन में वी आर गोना स्टार्ट विद द बेसिक्स की एक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होता है. एक्स बाय एम इज इक्वल्स टू के पी टू द पावर 1 by n. ठीक है, अगर मैं दोनों साइड लॉग ले लूँ, लॉग एक्स बाय एम इज इक्वल्स टू लॉग के प्लस 1 by n लॉग पी. ठीक है, तो यहाँ पे y की जो वैल्यू है वो log x by m है. ये जो log p है दिस इज c विच इज़ द इंटरसेप्ट. 1 by n इज़ द स्लोप जिसे हम m भी बोलते हैं, और ये log p जो है वो है x. तो उसी तरीके से यहाँ पे प्लॉट भी किया गया है ग्राफ. स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है बेसिकली. यहाँ पे मतलब कि जो स्लोप की वैल्यू है 1 by n है. ठीक है, अब हमें 1 by n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो जो 1 by n की वैल्यू है दैट इज़ द स्लोप. बेसिकली इज स्लोप इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 होता है. ठीक है, तो 1 by n इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, कितनी है 2. x2 माइनस x1 इज़ 3. तो ये 1 by n की वैल्यू हो गई 2/3. तो ये पूरा फिर इक्वेशन क्या बनेगा, x by m इज इक्वल्स टू के पी टू द पावर 1 by n. और 1 by n की वैल्यू कितनी है 2/3. सो p इज़ प्रोपोर्शनल टू x by m इज़ प्रोपोर्शनल टू p टू द पावर 2/3. दैट मीन्स a विल बी द करेक्ट ऑप्शन. तो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका a करेक्ट ऑप्शन है. ओके, so the next question is again from surface chemistry. This one theoretical question जो definition से है. Peptidization is a process of bringing colloidal molecule into solution. Process of converting precipitate into colloidal solution. Process of converting colloidal solution into precipitate, or process of converting soluble particles to form colloidal solution. तो ये basically definitions हैं. तो just keep in mind while you go through the revision pattern कि they can also ask the theoretical question from the definition itself. So basically peptidization is a process of converting precipitate into colloidal solution. That means B will be the correct option. तो जो second question है उसका correct option है B. Okay, next question. There's one cell reaction given over here for the following electrochemical cell at 298 Kelvin. ये पूरा एक सेल रिएक्शन दिया हुआ है. ई सेल की वैल्यू दी हुई है 0.092 वोल्ट व्हेन M2 प्लस बाय M4 प्लस एक्वस इज 10 to the power x. ई नॉट की वैल्यू भी दी हुई है 0.151 वोल्ट. 2.303 RT by F की वैल्यू है 0.059. सो यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x. तो सबसे पहले मैं
ये थर्ड क्वेश्चन में सेल रिएक्शन लिखते हैं. प्लैटिनम सॉलिड H2 गैस, pressure is given 1 bar, H plus aqueous, concentration is 1 molar, M4 plus aqueous, M2 plus aqueous, platinum solid. ओके, तो दिस इज द सेल रिएक्शन बेसिकली गिवन. तो सबसे पहले हम हाफ सेल रिएक्शन लिखते हैं, जहाँ पे एक जगह बेसिकली ऑक्सीडेशन होगा, एक जगह रिडक्शन होगा. तो ये जो फर्स्ट ऑब्वियसली जब लिखा होता है, तो फर्स्ट व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग द सेल रिएक्शन, फर्स्ट हम एनोड हाफ सेल रिएक्शन लिखते हैं. तो ये जो H2 वाला इस केस में ऑक्सीडेशन होगा. तो सबसे पहले सेल रिएक्शन लिखते हैं. 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ये ऑक्सीडेशन हो गया. अब रिडक्शन, 2 electron gives M2 plus. Oxidation is, I'm repeating again, I'm just revising it. Oxidation is basically, if you've forgotten, is loss of electrons. Reduction is basically gain of electrons. ठीक है, तो ये दोनों मैंने हाफ सेल रिएक्शन लिख दिया. Now if we add it up, add them together, H2 plus M4 plus gives 2H plus M2 plus. ठीक है, अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ हमें दी हुई है. ई सेल की वैल्यू दी हुई है, ई नॉट की वैल्यू दी हुई है. ठीक है, तो आई फर्स्ट इरेज दिस वन. तो ये क्या आया, H2 प्लस M4 प्लस गिव्स 2H प्लस M2 प्लस. अब मैं नर्स इक्वेशन लगाऊँ यहाँ पे. ई सेल is equals to E naught cell minus 0.059 by n log of product by reactant. ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम ये प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट की वैल्यू जो हमें यहाँ पुट करनी, वो सेपरेटली मैं लिख देती हूँ. तो क्या आएगा, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर इंटू M2 प्लस डिवाइडेड बाय H2, बेसिकली प्रेशर ऑफ H2 लेंगे हम सिंस इट इज़ अ गैस, इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M4 प्लस. ठीक है, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 1 मोलार और प्रेशर ऑफ H2 गैस इज ऑलरेडी मेंशन ओवर हियर, इट्स 1 बार. तो ये दोनों 1 हो जाएगा. तो ये बेसिकली वैल्यू क्या बचेगी यहाँ पे, M2 प्लस बाय M4 प्लस. ठीक है, तो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट की वैल्यू कितनी बचेगी, M2 प्लस बाय M4 प्लस, और इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 10 to the power x. तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर सकती हूँ. और ई सेल की वैल्यू है 0.092, ई नॉट की वैल्यू है 0.151 माइनस 0.059. एन इज़ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर विच इज़ 2 हियर. लॉग ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट की वैल्यू M2 प्लस बाय M4 प्लस आया था. ठीक है, since pressure of H2 gas was 1 bar and the concentration of H plus is 1 molar. तो 0.092 minus 0.151 is equals to minus 0.059 by 2 log of M2 plus by M4 plus की वैल्यू है 10 to the power x. ठीक है, अब इसे मैं सब्सट्रैक्ट करूँगी. 0.092 माइनस 0.151. So just a second, I'll just calculate and let you know the value. 0.092 minus 0.151, it is minus 0.059. और ये वैल्यू मैं अगर इधर ले जाऊँ तो 2 बाय माइनस 0.059 इज इक्वल्स टू लॉग 10 to the power x. तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास क्या बचा, log 10 to the power x is equals to 2. therefore x की वैल्यू होगी 2. this is the value of x calculated. that means for the third question D will be the correct option. third question के लिए D will be the correct option. okay, now next question. okay, so E naught values are given
4 E नॉट वैल्यूज़ आर गिवन, सो यू हैव टू टेल द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग दैम. तो यहाँ पे E नॉट Cl2 Cl माइनस की 1.36 वोल्ट दी हुई है. E नॉट ऑफ Cr3 प्लस क्रोमियम इज़ माइनस 0.74 वोल्ट. E नॉट ऑफ Cr2O7 2 minus 2 Cr3 plus is 1.33 volt. E naught of MnO4 minus by Mn2 plus is 1.51 volt. तो बेसिकली when it is talking about the reducing agent, तो जिसकी सबसे कम वैल्यू होगी E नॉट की, दैट विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. तो ये चार जो आप देख रहे हो इसमें से सबसे कम वैल्यू है E नॉट ऑफ Cr3 प्लस से क्रोमियम, बेसिकली माइनस 0.74 वोल्ट. दैट मीन्स chromium will be the strongest reducing agent. That means A will be the correct option for fourth. तो fourth question के लिए A will be the correct option. Okay, so the next question is एक सेल रिएक्शन अगेन दिया हुआ है. फॉर फॉलोइंग सेल रिएक्शन concentration of zinc 2 plus is 10 times the concentration of Cu2 plus. एक्सप्रेशन ऑफ डेल्टा जी इन जूल मोल इनवर्स इज, और E नॉट की वैल्यू दी हुई है 1.1 वोल्ट. ठीक है, तो सबसे पहले इस रिएक्शन में हाफ सेल लिख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन किस पे हो रहा है और रिडक्शन किस में. तो सबसे पहले ये फिफ्थ क्वेश्चन में जिंक सल्फेट, ऑब्वियसली दिस इज ऑक्सीडेशन, कॉपर सल्फेट से कॉपर. ठीक है, नाउ जिंक से ये जा रहा है जिंक 2 प्लस, दिस इज ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन, प्लस कॉपर 2 प्लस से जा रहा है कॉपर में, विच इज़ रिडक्शन. ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं नर्स्ट इक्वेशन लगाऊँ, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाय NF लॉग ऑफ Zn2 प्लस, ऑब्वियसली सॉलिड का नहीं लेंगे, कॉपर और जिंक का नहीं होगा, डिवाइडेड बाय कॉपर 2 प्लस. और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या मेंशन किया है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक 2 प्लस इज 10 टाइम्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस. मतलब कि अगर मैं कॉपर 2 प्लस का अज्यूम कर रही हूँ कॉन्सेंट्रेशन x, तो Zn2 प्लस का कितना होगा, 10 टाइम्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस, दैट मीन्स 10x. तो ई सेल की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है, ई सेल की वैल्यू नहीं दी, सॉरी, वो तो कैलकुलेट करना है. ई नॉट की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 1.1, ई सेल की वैल्यू 1.1 माइनस 2.303 RT बाय एन की वैल्यू है 2, सिंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज 2, तो ये आएगा 2F लॉग ऑफ, अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस एक्स लूँगी तो Zn2 प्लस का कितना बोला है, 10 टाइम्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस, तो 10x. ये दोनों कैंसिल. ठीक है, तो अब ये क्या आ गया, ई सेल इज इक्वल्स टू 1.1 माइनस 2.303 RT बाय 2F, लॉग 10 की वैल्यू है, होती है 1. ठीक है, ये हमारा ये एक इक्वेशन आया है. तो हमें बेसिकली कैलकुलेट क्या करना है, डेल्टा जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर विद द क्वेश्चन. व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इन जूल मोल इनवर्स. ठीक है, तो डेल्टा जी ऑब्वियसली इन ऑर्डर टू फॉर अ रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी. ठीक है, माइनस NF ई सेल, एन की वैल्यू है 2, F ई सेल की वैल्यू 1.1 माइनस 2.303 RT बाय 2F. ठीक है, नाउ अब इसे हम सॉल्व करेंगे. सो दिस विल बी माइनस 2.2 F प्लस 2 इंटू 2F इंटू 2.303 RT बाय 2F. ठीक है, ये 2F कैंसिल हो गया, कुछ नहीं किया है मैंने. बेसिकली ये जो वैल्यू माइनस 2F है, इंडिविजुअली ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, दिस इंटू दिस, उसके बाद दिस इंटू दिस वैल्यू, ये दोनों कैंसिल हो गया. तो क्या आएगा, माइनस 2.2F प्लस 2.303 RT. ठीक है, तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ गई, 2.303 RT माइनस 2.2F. ओके, अब यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया. नाउ मैच फ्रॉम द ऑप्शन विच वन इज़ करेक्ट. तो बेसिकली डेल्टा जी की वैल्यू यहाँ पे 2.303 RT, ये सब वैल्यू तो होंगे नहीं, 2.303 RT माइनस 2.2F, मतलब कि फिफ्थ का जो C है वो करेक्ट ऑप्शन होगा. C विल बी द करेक्ट ऑप्शन.
ओके, दैट वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन. फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन बेसिकली कैलकुलेटिव होते हैं, सो यू नीड टू हैव पेशेंस व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस. डोंट गिव अप, डू नॉट वरी, just practice a lot of questions so that you become a pro with that. Okay, next question. Lambda m naught for NaCl, HCl and Na are 126.4, 425.9 and 100.5 Siemens centimeter square mole inverse respectively. If conductivity of 0.001 molar Ha is 5 into 10 to the power minus 5 centimeter inverse, degree of dissociation of Ha is. तो बेसिकली डिग्री ऑफ डिसोशिएशन मतलब कि आपको अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहाँ पे. ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. दिस इज़ द 6th क्वेश्चन. तो अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए. लैम्डा एम दैट इज़ मोलर कंडक्टिविटी, और ये लैम्डा एम ये जो नॉट है दिस इज़ द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. ठीक है, तो सबसे पहले हमें किसका कैलकुलेट करना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन HA. ठीक है, तो यहाँ पे लैम्डा एम नॉट की वैल्यू बेसिकली इनफाइनाइट डाइल्यूशन के कुछ कंपोनेंट्स के दिए हुए हैं. NaCl के दिया हुआ है, HCl का दिया हुआ है, NaA का दिया हुआ है. तो इससे मैं लैम्डा एम नॉट की वैल्यू फर्स्ट कैलकुलेट कर सकती हूँ HA के लिए. फिर दूसरा वैल्यू, ये जो वैल्यू आ जाएगी तो इससे हमें लैम्डा एम नॉट की वैल्यू पता चल जाएगी यूजिंग कॉलरेट्स लॉ. देन ये कंडक्टिविटी की वैल्यू दी हुई है हमें और कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, तो हमें उससे लैम्डा एम की वैल्यू पता चल जाएगी. सो वी हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट दीज टू वैल्यूज़. तो उसका फिर हम रेशियो लेंगे, देन ओनली वी कैन कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज़ अल्फा ऑफ HA. तो सबसे पहले यूजिंग कॉलरेट्स लॉ, लैम्डा एम NaCl का कितना है दिया हुआ है 126.4. ठीक है, HCl का दिया हुआ है 425.9 और NaA का दिया हुआ है 100.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. ठीक है, तो इससे मैं अब HA का लैम्डा एम नॉट बेसिकली मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैसे कैलकुलेट करूँगी. ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं ये दोनों को ऐड कर दूँ, ठीक है, तो इससे हमें NaCl की वैल्यू प्लस HA की वैल्यू मिल जाएगी. और हमें HA की वैल्यू चाहिए, तो उससे मैं माइनस लैम्डा एम नॉट ऑफ NaCl करूँगी तो हमें लैम्डा एम नॉट ऑफ HA मिल जाएगा. बेसिकली कैसे, देखो, लैम्डा एम नॉट ऑफ HCl प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ NaA माइनस लैम्डा एम नॉट ऑफ NaCl. ठीक है, ये दोनों को मैं ऐड करूँगी तो किसकी वैल्यू मिलेगी, NaCl और HA की, और उसमें से मैं लैम्डा एम नॉट NaCl की वैल्यू माइनस कर दूँगी तो क्या बचेगा, सिर्फ लैम्डा एम नॉट ऑफ HA. तो HCl का है 425.9, इसका है 100.5 माइनस 126.4 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. ठीक है, तो अब मैं वैल्यू कैलकुलेट करती हूँ. 425.9 प्लस 100.5, 425.9 प्लस 100.5, so it will give you 526.4 minus 126.4. तो 526 that will give you value 400. तो इससे लैम्डा एम नॉट HA की वैल्यू आ रही है टोटल 400 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. ये लैम्डा एम नॉट की वैल्यू मिल गई. ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ लैम्डा एम नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, 400 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. ओके, तो एक काम तो हमने कर लिया. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा एम. तो उसे मैं वैल्यू कैलकुलेट कैसे कर सकती हूँ, यहाँ पे सेकेंड पार्ट ऑफ जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ यू रीड इट, इट सेज की कंडक्टिविटी की वैल्यू दी हुई है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 सीमन सेंटीमीटर इनवर्स, और कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 0.001 मोलार. तो कापा विच इज़ कंडक्टिविटी इंटू 1000 बाय एम विच इज़ द कॉन्सेंट्रेशन. इसकी वैल्यू दी हुई है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू 1000 को मैं 10 टू द पावर 3 लिख दे रही हूँ. ये कॉन्सेंट्रेशन है 0.001. ठीक है, ये हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2
बाय 10⁻³ ठीक है। अब ये लैम्डा m 5 इंटू 10⁻², ये -2 -3 हो जाएगा, तो ये +3, तो ये 5 इंटू 10 दैट मीन्स 50 आएगा वैल्यू, 50 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स ठीक है। अब हमारे पास इनफाइनाइट डाइल्यूशन की भी वैल्यू दी हुई है, इसकी भी वैल्यू हमें मिल गई, तो हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज़ 50/400 क्या था, लैम्डा m बाय लैम्डा m0, 5 1 ज़ा 8 ज़ा 1/8, तो 1/8 0.125 इज़ द आंसर। तो यहाँ पे जो 6th क्वेश्चन है उसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, विच इज़ 0.125, डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट ऑप्शन अमंग फॉलोइंग इज, ये सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। द करेक्ट ऑप्शन अमंग फॉलोइंग इज कोलोइडल मेडिसिन आर मोर इफेक्टिव बिकॉज दे हैव स्मॉल सरफेस एरिया। तो बेसिकली ये गलत स्टेटमेंट है। ब्राउनियन मोशन इज कोलोइडल सोल्यूशन, Brownian motion in colloidal solution is faster if viscosity of solution is very high. Addition of alum to water makes it unfit for drinking, which is again, these both are again incorrect statements. Colloidal particles in lyophobic salts can be precipitated by electrophoresis. Yeah, this is the correct option because colloidal particles in lyophobic salts can be easily precipitated through electrophoresis. So D will be the correct option. जो 7th question है उसका correct option होगा D. 8th question. सो दिस गिवन गैस, 4 गैस दिए हुए हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर दिया हुआ है। फॉर H2 इट इज़ 33, CH4 मीथेन 190, CO2 304, SO2 630. प्रिडिक्ट विच गैस अमंग देम शोज लीस्ट एड्जॉर्प्शन ऑन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ चारकोल। ओके, तो यहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू दी हुई है ठीक है। 8th क्वेश्चन, क्रिटिकल टेम्परेचर यानी कि TC हमें पता है, TC इज इक्वल्स टू 8A/27 RB. Okay, TC is the critical temperature and A is the intermolecular forces. तो बेसिकली अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा होगा तो गैस कैन बी इजीली एब्जॉर्ब्ड ऑन द अमाउंट ऑफ डेफिनेट अमाउंट ऑफ चारकोल। तो अगर क्रिटिकल टेम्परेचर जिसका सबसे ज़्यादा कम होगा दैट विल बी लीस्ट एब्जॉर्ब्ड। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं H2, CH4, CO2 और SO2 में, इसमें सबसे कम वैल्यू है H2 की 33, दैट मीन्स इट विल बी लीस्ट एब्जॉर्ब। तो ये क्वेश्चन में भी पूछा है कि लीस्ट एब्जॉर्ब कौन सा गैस करेगा, तो दैट विल बी H2 यानी कि D. सो D विल बी द करेक्ट ऑप्शन विच इज़ H2. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग एक्वस सोल्यूशन इज़। तो यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि सबसे ज़्यादा, फिर कम, फिर सबसे छोटा वैल्यू बताना है आपको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का। 3 एक्वस सोल्यूशन दिए हैं। पहला है 0.1 मोलर फॉर्मिक एसिड, 0.1 मोलर एसिटिक एसिड, ये है 9th क्वेश्चन, ये A, ये B, और 0.1 मोलर बेंजोइक एसिड ठीक है। तो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का। तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, बेसिकली अगर इफ़ यू टेक इन अकाउंट दैट कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप अगर प्रेजेंट है किसी भी एसिड में, दैट विल मेक इट मोर एसिडिक विच एनहांसेस इट्स एसिडिक स्ट्रेंथ। तो उसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी उतनी ज़्यादा होगी और कंडक्टिविटी ईजिली होगी। तो यहाँ पे सबसे जो कम वैल्यू होगी वो होगी इसकी, सिंस देयर इज अ CH3 ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इज अटैच, तो B की तो सबसे कम होगी। तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, HCOOH, फिर होगी C की, फिर होगी B. दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग एक्वस सोल्यूशन। दैट मीन्स A विल बी द करेक्ट ऑप्शन, 9th का A.
ओके, सो द लास्ट क्वेश्चन इज विच अमंग देम बिटवीन लैम्डा एम वर्सेज रूट सी इज करेक्ट। तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रोलाइट्स दिए हुए हैं, एक तो NaCl है और एक KCl है। इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट हुआ है बेसिकली लैम्डा एम और रूट सी के बीच में, विच इज़ कॉन्सेंट्रेशन। तो ये जो 10th क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको पता है कि इफ़ वी टेक इन अकाउंट NaCl एंड KCl, दे बोथ आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो इसके लिए मैं डिबाय हकल ऑन सागर इक्वेशन लगा सकती हूँ। लैम्डा एम इज इक्वल्स टू माइनस बी रूट सी। दिस इज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है, और बी जो है कांस्टेंट है। तो यहाँ पे NaCl और KCl में बेसिकली Na+ कैटायन है और इसमें K+ कैटायन है। ये हो गया NaCl का, ये हो गया KCl का, ठीक है। अब यहाँ पे विदाउट, आई एम नॉट सीइंग द ऑप्शन राइट नाउ, इफ़ इट यहाँ पे बेसिकली लैम्डा एम वर्सेस रूट सी के बीच में ग्राफ प्लॉट किया है। तो Na+ और K+ के बीच में जो Na+ है उसका साइज़ छोटा है, सो इट विल बी ईजिली हाइड्रेटेड एंड इट विल बेसिकली स्टे फॉर अ लॉन्गर टाइम इन द एक्वस सोल्यूशन। उसकी आयनिक मोबिलिटी कम होगी एज़ कम्पेयर टू KCl, क्योंकि जो स्मॉलर जो साइज़ की जो कैटायन है, इट विल बी हाइड्रेटेड मोर एंड इट विल बी केप्ट इन द एक्वस सोल्यूशन। तो इलेक्ट्रिक जो आयनिक मोबिलिटी है वो Na+ की कम होगी एज़ कम्पेयर टू K+, मतलब कि KCl जो है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो KCl की वैल्यू, ये दोनों ऑप्शंस तो पहले से ही कट जाएंगे, तो KCl की वैल्यू जिसमें ज़्यादा होगी वो वाला ग्राफ सही होगा। तो KCl की वैल्यू इसमें आप देखोगे कि इसमें ज़्यादा है इफ़ यू प्लॉट द ग्राफ बिटवीन लैम्डा एम और रूट सी, ठीक है। तो ये जो ज़्यादा वैल्यू है वो है KCl की और ये जो कम वैल्यू है वो है NaCl की। दैट मीन्स C विल बी द करेक्ट ऑप्शन in which you have taken account about the strong and weak electrolytes. Basically NaCl and KCl both are strong electrolytes. Okay, so that was all about this video in which I have solved few questions. Actually there were few good questions. It was little lengthy because there were a lot of numericals in this chapter, electrochemistry. So that was all about it, and I hope this video was fruitful, and thank you for watching.